Yes, sir. Okay. So in last lecture, what we have seen, we have talked about like an anonymous object, right? We have talked about anonymous object and constructor overloading. So those are the two things we have seen, right, in last lecture. बराबर. ओके. Yes, sir. तो उसमें डू वॉट एवर वी हैव सीन लास्ट टाइम, जो भी हमने कल देखा था, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देयर? Whether you are getting errors in the solving the questions, or somewhere you are finding yourself in trouble implementing those topics? Yes, guys. कुछ भी प्रॉब्लम है? You can freely tell me if you have any kind of issues regarding that. योगेश्वरी, धनश्री, कुछ प्रॉब्लम है about constructor overloading, our anonymous object which we have seen yesterday? नहीं है कुछ प्रॉब्लम? आगे बढ़े. Yes, sir. देखो, क्योंकि this is the this is the object oriented principles, and sometimes interviews come from this, not sometimes, but there are three things which I have already, if you remember, I have told this many time, I have conveyed this many time. You will get a absolutely 100% question on the object oriented programming language. Okay, you will get 100% the question on the oops. Okay, the frequency of the questions will be varies, but you will get questions on the oops. You will get, definitely you will get the question on the data structures. Okay, you will here, you will get some theoretical questions. Okay, theoretical plus very rare you will get a code. Okay, very rare you will get, very rare, it will happen that you will get a code to write on the object oriented programming language. Okay, you will get a theoretical questions here. Maybe sometime you will have to write a code just to demonstrate how does it work. In data structure, you will get a theory plus code. You will have to write a code. You should know how that particular algorithm works. So you will get questions from the OOPS, you will get questions from the data structures, and you will get the questions from the project you will make. Whether you will go for like a data, you will go for Android development, web development, or whether you will go for machine learning. So whatever project you have created, you will get the question from there. So this is the three areas from where the question will come to you. ठीक है? हम्म. तो सर, हम. हाँ हाँ. हाँ, बोलो बोलो. कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे सर. ओके ओके, मैं करवाता हूँ. ठीक है. थोड़ी पहले टॉपिक देख लेते हैं. आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक. सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे एक दो क्वेश्चन मैं खुद करवा के बताता हूँ. ठीक है. अब क्या करूंगा, ओके सर. व्हाट आई विल डू कि सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको. आई विल डू सम क्वेश्चंस एंड देन यू विल ट्राई टू डू द सेम. थोड़ा आगे पीछे लॉजिक हो सकता है, बट इट विल बी द सेम. आज हम पढ़ने वाले विच इज नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल. तो हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट देखे हैं. वी हैव सीन अ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, राइट? Classes and object. So we know what is my class, we know what is my object. Then we have seen like a polymorphism, right? है ना? Polymorphism में हम कौन सा वाला polymorphism देखा है? We have seen a compile time polymorphism, right? Which is called as a method overloading. है ना? योगेश्वरी, धनश्री, method, अंकित, overloading. So Yes. this we have seen. उसके बाद में हमने कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल देखा है? सो दिस इज द टू प्रिंसिपल्स वी हैव सीन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म. दिस इज द ओनली टू प्रिंसिपल्स वी हैव सीन. अब उसमें हमने दिस कीवर्ड देखा है. सो देयर आर द स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स व्हिच इज केम इन बिटवीन, बट दैट दोस आर नॉट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल. So today we are going to start the next principle which is the inheritance. Okay, so आज का टॉपिक का नाम है inheritance. So we are going to start the very important topic. It is a core, uh, it is a fundamental, or we can say a pillars of object oriented principles. Okay, so inheritance. Okay, Ankit, Yogeshwari, sound आ रहा है ना properly? Yes, अंकित, sir. sound आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल यू विल सी इट इज कमिंग फ्रॉम द रियल लाइफ. इट एक्चुअली कम फ्रॉम रियल लाइफ. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वी कैन रियली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द रियल लाइफ. हम रियल लाइफ से रिलेट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल इज ओनली, एवरीथिंग इज रियल लाइफ। अब आज हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। सो गाइज, व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस, व्हाट, ये इनहेरिटेंस लाइफ में कैसे दिखता है जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं। सो हाउ दिस इनहेरिटेंस, लाइक we can see inheritance, how we can see inheritance around us, around our like a surrounding, everywhere। inheritance कहाँ दिखता है हमें, where we can see inheritance? yes, what is my In inherit? human beings. yes, बोलो बोलो, very good, बोलो। In human beings. okay, inheritance का मतलब क्या होता है? जैसे वेरिएशन। इनहेरिटेंस का सिंपल वे में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो सपोज आप और आपकी मदर खड़े हो, राइट? दिस यू, ओके, नो, जस्ट कंसीडर इट, ओके, आई एम नॉट गुड एट इन ड्राइंग। सपोज दिस इज यू, सो ए इज यू, ओके, और आई विल राइट, कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज यू, ओके, फाइन, and this is like a your mother, let's consider it, okay, so this is you and this is your mom, fine। अब अगर कोई थर्ड पर्सन भी देख लेगा, सपोज आप और आपकी मॉम कहीं शादी फेस्टिवल, कहीं लाइक कहीं प्रोग्राम है, क्या कुछ शादी है, वेडिंग है, वहां पे गए हो। अब कोई थर्ड पर्सन है जो कि आपको पहचानता ही नहीं है, जो कि रिलेटिव है या फिर कोई अननोन है, लेट्स टेक इट इज अननोन पर्सन, ओके, जिन जो आपको नहीं पहचानता, आपके आपके मॉम को भी नहीं पहचानता, दोनों में से किसी को नहीं पहचानता, बट अगर वो देखेगा, ओके, आपके ग्रुप को, आपके पेयर को, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि यू आर, मीन्स दैट पर्सन कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इट्स यू एंड योर मॉम, मीन्स द पर्सन विच इज स्टैंडिंग विथ यू, इट्स योर मॉम। समझ में आ रहा है? वो बाहर से देख के पता कर लेगा कि ये तो इसकी मदर है। समझ में आ रहा है कैसे फाइंड आउट किया? हम्म, समझ में आ रहा है? Outer appearance. अपीयरेंस, क्या अपीयरेंस? क्योंकि समवेयर आप और आपकी आपके जो फादर है, आप फादर और मदर की कुछ प्रॉपर्टीज आपके अंदर आती है ना, ऐसे फोकस करो कि आपका फेस हो सकता है थोड़ा फादर जैसा हो या फिर मदर जैसा हो, बराबर है? समझ में आ रहा है? टोटली एग्जैक्ट नहीं होगा ना कि आपका मदर का जो फेस है वही मेरा फेस है, एग्जैक्ट तो रिप्लिका नहीं होगा, बिकॉज आपके मदर का फेस और आपका फेस कहीं ना कहीं मैच होता है और वो दिखता है। समझ आ रहा है गाइज? कुछ प्रॉपर्टीज जो है, हम क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है पेरेंट की, राइट, वी हैव अ पेरेंट, कुछ प्रॉपर्टी होती है पेरेंट की जो कि चाइल्ड में ट्रांसफर होती है, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइज? Yes. ओके, तो कुछ प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट की 100% होती है क्या? 100% जो है प्रॉपर्टी चाइल्ड में आती है क्या? 100% नहीं आती, बट कुछ प्रॉपर्टीज होती है, डिपेंड होता है, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है, बराबर है? समझ में आ रहा है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत फेयर रहती है ना, वो कुछ लगाएंगे भी नहीं, वो दिन भर धूप में घूमेंगे या फिर कुछ केयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर भी उनका स्किन अच्छा होता है, बराबर है ना? तो आप उनको Yes. पूछोगे कि Yes. तेरा स्किन इतना अच्छा कैसा है, क्या लगाता है, वो बोलेगा जेनेटिक है। कोई होता है कि बहुत लोगों के हेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, या लड़कियों में भी उनके हेयर्स बहुत लंबे होते हैं। आप उनको पूछोगे कि क्या सीक्रेट है, मेरे को बताना, मेरे को भी थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, वो बोलेंगे जेनेटिक है, मैं कुछ नहीं लगाता या फिर मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ 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 क्वालिटीज जो है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है, और प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम? जीन बोलते हैं, बराबर है? वी कॉल इट एज अ जीन, बराबर गाइस, है ना? समझ आ रहा है? Yes, sir. समझ आ रहा है? यस तो सर। ऐसे बोलते हैं कि पेरेंट्स से चाइल्ड में कुछ ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। अब जब इस चाइल्ड के दूसरे चाइल्ड्स होंगे, बराबर है, इस चाइल्ड के अब आगे भी चाइल्ड होंगे ना, तो इस चाइल्ड में आगे भी कुछ चाइल्ड होंगे, तो ये सेम प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इसमें भी ट्रांसफर हो रही है, बराबर है? बराबर है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो, यस समझ सर। में आ रहा है? तो Yes, कुछ sir. प्रॉपर्टी जो पेरेंट में
पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर होती रहती है। अब इसके कुछ बेनिफिट भी है, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया हेयर का, स्किन का, कुछ लाइक बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है जो कि आपके पेरेंट्स से चाइल्ड में जाती है। कुछ कुछ चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होती है, जैसे अगर पेरेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, राइट, है ना, हार्ट प्रॉब्लम है, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि चाइल्ड में भी हार्ट प्रॉब्लम आएगा। समझ आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? कोई हो सकता है कि पेरेंट में शुगर या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो चाइल्ड में भी आएगी। समझ आ रहा है? वो भी तो एक प्रॉपर्टी है ना, जो कि पेरेंट में है, तो वो भी चाइल्ड में आएगी। समझ आ रहा है? ओके। तो इनहेरिटेंस से कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी होती है, बट कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें भी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी के फादर के हेयर लॉस है, यानी उनको हेयर ही नहीं है, ओके, सर के ऊपर, तो वो बोलेंगे कि उनको, उनके लड़के क्या बोलेंगे दोनों में से कि मेरे पापा का जो है ना वो कुछ हेयर से ज्यादा नाता अच्छा नहीं है, तो हमें भी आगे जाके हेयर फॉल होने ही वाला है। बराबर? समझ रहे हैं? है ना, है ना? हम्म। Yes, sir. तो ये होता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कुछ पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। और इसलिए हम बोलते हैं कि वी आर लाइक, हम जो है ना वो किससे आए हैं? वी आर कमिंग फ्रॉम, यस, जंगल से जब हम आए तो हम कहाँ से आए हैं? हम्म, होमोसेपियंस, राइट, वी आर कमिंग फ्रॉम होमोसेपियंस। बरोबर है ना? अच्छा, मैं बोलता हूँ कि आपके परदादी, दादा, परदादा, ऐसे कुछ दादा थे, बराबर है, बहुत 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 पहले। समझ में आ रहा है? ओके। बोलता हूँ बहुत, अगर आप -100 जाओगे, ध्यान देना, फोकस करना, अगर हम जहाँ पे खड़े हो, अगर जो जनरेशन है, अब -100 तो बहुत हो जाएगा, मैं बोलता हूँ आप -50 चले जाओगे, आपकी जो करंट जनरेशन है उस जनरेशन से आप -50 जनरेशन चले गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? यानी जो करंट आपकी, करंट जो जनरेशन है ना, आपकी आपकी जो करंट जनरेशन होगी ना, है ना, योगेश्वरी, धनेश्वरी, बराबर है, जो आपकी करंट जनरेशन, उससे आप पीछे चले गए -50 ईयर्स, लेट्स टेक -50, 50 तो बहुत हो जाएगा, बट -50 जनरेशन आप पीछे चले गए, -50 जनरेशन। तो यहाँ पे जो जनरेशन है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कुछ कोई लोग होंगे जहाँ से आपकी जनरेशन स्टार्ट हुई होगी, तो उन लोग, ये जो -50 जनरेशन थे, या फिर जितने पीछे जनरेशन चले जाओ, 10 जनरेशन है, 5 जनरेशन है, कुछ भी जनरेशन है, वहां से चले जाओ, कहीं ना कहीं उन जनरेशन का भी प्रॉपर्टी आपके अंदर अभी भी है। समझ में आ रहा है? कहीं ना कुछ प्रॉपर्टीज उनकी आपके बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? वो इतनी छोटी हो सकती है कि वो हमें नजर ना आए, या फिर इतना हमें उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, बट जेनेटिक में जाएंगे, अगर बहुत पीछे चले जाओगे ना, तो फिर पता चल सकता है। बट कहीं ना कहीं बोलता है कि आपके पर दादा जो थे, उनकी भी जीन आपके पास में है, या फिर उनकी भी प्रॉपर्टीज आपके पास में है। समझ में आ रहा है? ऐसे बोलते कि जो पर दादा थे ना, उनका नाक, उनका जो नाक था ना, वो आपका नाक है, यानी उनका जो नोज था ना, उनकी नोज आपके पास में है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास में ट्रांसफर हो रही है, और आगे भी कुछ कुछ ट्रांसफर होगी। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, समझ आ रहा है? यस सर। सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग सम प्रॉपर्टी, यानी एक पर्सन, यानी पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टी दूसरे के पास में ट्रांसफर होती है। बराबर है? किसके पास में ट्रांसफर होती है? चाइल्ड के पास में। तो पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड के पास में ट्रांसफर होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है? sir. अब अगर पेरेंट के पास में ए प्रॉपर्टी है, तो चाइल्ड के पास में क्या प्रॉपर्टी होगी? चाइल्ड के पास में ए और बी प्रॉपर्टी होगी ना। यानी चाइल्ड के पास में पेरेंट की प्रॉपर्टी तो होती ही है, बट चाइल्ड के पास में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि पेरेंट के पास में नहीं है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये समझ में आया? बोलो। Yes, sir. कि चाइल्ड के पास में ए प्रॉपर्टी तो है जो कि पेरेंट के पास में साथ साथ पेरेंट से आ रही है, बट कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि पेरेंट के पास से नहीं आती, क्योंकि अगर
ये यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होती, और खाली ए प्रॉपर्टी आपके चाइल्ड में आ रही होती तो चाइल्ड और पेरेंट एग्जैक्ट दिखता, उनमें सेम ही प्रॉपर्टी होती, कुछ भी थोड़ा भी फर्क नहीं होता। तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज आती है और कुछ पेरेंट की प्रॉपर्टीज आती है, इसलिए तो आप अलग दिखते हो ना, क्योंकि आपके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी है और कुछ पेरेंट की प्रॉपर्टी भी है। पूरा तो आप पेरेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं हो, पूरी ही प्रॉपर्टी आपके पास में ट्रांसफर नहीं हुई है, बराबर है? समझ आ रहा है गाइस? तो जो यूनिक प्रॉपर्टी है ना, ये यूनिक प्रॉपर्टी ये आपको डिफरेंट बनाता है फ्रॉम पेरेंट। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, इतना समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो अगर आप कहीं मुझे कहीं मेट्रो में या फिर कहीं कहीं पकड़ लेते हो, अगर आप हमारा मिलना होता है, तो अगर मेरी मॉम साथ में है तो आप दूर से देख के बता दोगे कि ये सर की मॉम लग रही है, मेरे को तो लग रहा है कि सर की मॉम ही है। आपने कैसे पता करा? आपने कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखी कि ये मैच हो रही है, बराबर है? कुछ प्रॉपर्टीज मैच हो रही है। 100% मैच हो रही है क्या? नहीं मैच हो रही। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी है और पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी है। समझ आ रहा है? इतना समझ आया? यस। यस सर। पक्का पक्का। इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉब्लम Yes, है sir. तो इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? Features of one class is acquired by another यस, class. फीचर्स, फीचर ही बोल सकते हैं, जैसे स्किन कलर है, हेयर है, हाइट है। कोई होता है कि वो कितना भी खाएगा ना उसको कुछ लगेगा ही नहीं। हम बोलते हैं ना, वो खाता पीता नहीं है क्या, थोड़ा खाया पिया कर, वो बोलता मैं तो इतना खाता हूँ बट मेरे को लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जेनेटिक्स होता है। किसी के बाल बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं, बराबर है ना? बहुत जल्दी कम एज में वाइट हो जाते हैं। अब बाकी भी उसमें चीजें होती है, यानी बाकी भी पैरामीटर्स होते हैं जिससे वो हो रहा है, बट वो बहुत जल्दी होने लगता है। यानी नॉर्मली में हमें, अगर मुझे या फिर आपको उस स्टेज पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, बट वो जल्दी बहुत चल जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है उस स्टेज पे। तो कुछ तो एक्स्ट्रा चीज है उसके अंदर जो कि उस प्रोसेस को फास्ट कर रही है या फिर जल्दी होने को कर रही है कि उसको होना है। जैसे कि अ, किसी के बाल जल्दी बढ़ते हैं, किसी के बहुत स्लो बढ़ते हैं, यानी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी का स्किन कलर बहुत अच्छा होता है, किसी के आईज बहुत अच्छे होते हैं। हम बोलते हैं ना किसी इसकी ब्लू आईज है, या फिर कुछ आईज वगैरह भी हमें अच्छे लगते हैं। किस वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस जो कि बहुत रेयर होते हैं, है ना, देखने में। तो वो इनहेरिटेंस से आता है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इनहेरिटेंस। ओके, एंड यू कैन सी इनहेरिटेंस इन एवरीवेयर। इनहेरिटेंस हम में ही दिखता है क्या? हर इसमें दिखता है नहीं इनहेरिटेंस, राइट? वो हमें Yes, अपीयरेंस sir. में अपीयरेंस में नहीं दिखाई देगा। जैसे वी हैव टू डॉग्स, हमारे पास दो डॉग है। ओके, तो दिस इज द डॉग वन, और वी कैन सी वी हैव अ मदर डॉग। ओके, तो हमारे पास अ, ये मदर है, एंड दिस मदर विल हैव अ मल्टीपल पपीज। ओके, सो विल राइट अ P1 P2 P3 P4। अब ये पपीज को देख के आप बोल नहीं पाओगे कि ये जो मदर है ना, ये जो मदर है इनकी ये पपीज है, क्योंकि बाकी एनिमल्स में ये डिफरेंस देख पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बराबर है? बट आप अगर मदर का कलर देखोगे ना, तो आपको पपीज में भी वही कलर दिखाई देगा कहीं ना कहीं, बराबर? क्योंकि दिखने में तो डॉग एक ही जैसे दिखते हैं ना। डॉग में कुछ होता है कि अलग अलग कुछ कलर को छोड़ के डॉग तो सारे ही सेम लगते हैं। यानी वो डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर ट्रांसफर हुई है, उस हिसाब से वो दिखेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? Yes, तो sir. अगर मदर के पास में कुछ प्रॉपर्टी है विच इज लाइक, अब प्रॉपर्टी जो मदर से नहीं आती है खाली, हाँ, यहाँ पे फादर से भी प्रॉपर्टीज आती है। मदर और फादर दोनों की प्रॉपर्टीज आती है। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस क्लियर, प्रॉपर्टी मदर से नहीं आएगी, दोनों फादर से भी आती है कुछ प्रॉपर्टी, मदर से भी आती है। ओके, तो फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टी, तो ए और बी दो दो प्रॉपर्टी है। अब अगर ये ए और बी से पपीज आई है हमारे पास, ए बी, P1 P2 P3 P4, तो कहीं ना कहीं आपको ए और बी दिखाई देगा। समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं इन पपीज में आपको ए और बी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा अपीयरेंस में, या फिर ए और बी मिलके कुछ नया कलर बना दे, ये भी हो सकता है, बराबर है ना गाइस? समझ में आ रहा यस सर। है ना? Yes, sir. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज जो वो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। समझ में आ रहा है? 100% होती है क्या प्रॉपर्टी चाइल्ड में ट्रांसफर? नहीं होती है। कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड में ट्रांसफर होती है, कुछ जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है,
डॉग्स में या फिर किसी भी इसमें, किसी भी आप प्लांट में देख लो। अब प्लांट में भी वहां पे भी इनहेरिटेंस काम करता है। अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पे जाओगे तो हर हर चीज में इनहेरिटेंस आपको दिखेगा जो लिविंग है। नॉन लिविंग में हमें इनहेरिटेंस नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं होती है। तो सेम ही है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास डॉग है, सो आई हैव अ डॉग, या फिर मेरे पास आई हैव अ पेरेंट। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक क्लास की बात करते हैं तो आई हैव अ क्लास ए, right? I have a class A. So inside a class A, I have two things like a data member, right, and member function. Right now, Yogeshwari, Dhanasari, I have Yes, sir. every class will have two things. Now, what is the meaning of inheritance? Inheritance means we can access, we can have the property of parent inside a child, right? यानी जो चाइल्ड होता है उसके बाद में पेरेंट की प्रॉपर्टी और खुद की प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी होती है ना, विच इज हैविंग अ पेरेंट प्रॉपर्टी एंड खुद की प्रॉपर्टी। जैसे मेरे पास एक क्लास ए है और मैं बोलता हूँ मेरे पास क्लास बी है। जैसे मैंने बोला था कि एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर, अब देखो यहाँ पे होता है कैसे। तो मेरे पास ये क्लास है विच इज अ क्लास बी, सो आई विल राइट अ क्लास बी, सो दिस इज अनदर क्लास आई हैव। इसमें भी कुछ डेटा मेंबर्स होंगे डीएम, इसमें कुछ मेंबर फंक्शन होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, मुझे चाहिए कि जो क्लास ए है इसके अंदर जो भी डेटा है, डेटा मींस मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन दोनों, व्हाट आई वांट कि ये जो ये क्लास ए है इसकी प्रॉपर्टीज मैं दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकूं। समझ में आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक क्लास Yes, है, sir. तो आई वांटेड टू एक्सेस द प्रॉपर्टी of one class into another class। समझ में आ रहा है? I wanted to have this property। Actually प्रॉपर्टी कहाँ पे होती है? प्रॉपर्टी तो पेरेंट के अंदर ही होती है ना। प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट के अंदर ही होती है। जैसे हम बोलते हैं कि इनहेरिटेंस में भी प्रॉपर्टी पेरेंट से उठ के चाइल्ड में चली जाती है क्या? होती तो पेरेंट के पास में ही है ना। समझ में आ रहा है कि वहां से पेरेंट से निकल गई और चाइल्ड में आ गई और पेरेंट के पास में कोई वो प्रॉपर्टी बची नहीं, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। या फिर ऐसे समझो, इसको और सिंपल बनाते हैं। सो अब क्या है, सो लाइक सपोज वी हैव अ पेरेंट। अब पेरेंट के पास में कुछ प्रॉपर्टीज होगी, राइट। सपोज लाइक कुछ मनी है, फोन है, सो वी हैव अ प्रॉपर्टीज इन पेरेंट। सपोज पेरेंट के पास में कुछ प्रॉपर्टी है, सो आई विल राइट ए हियर। आई विल नॉट राइट लाइक मेक सो मच थिंग कॉम्प्लिकेटेड, सो आई विल राइट हियर ए। सो ए इज अ पेरेंट। अब इनके पास में कुछ डेटा है, सो आई विल राइट ए बी सी डी। ओके, सो ए बी सी, ए बी सी डी, जस्ट कंसिडर इट। दिस इज द प्रॉपर्टी दिस ए विल हैव। अब इनके पास में जब चाइल्ड, इनका जब चाइल्ड होगा, सपोज आई विल राइट बी, सो बी इज द चाइल्ड, ओके, जिसका एक पैर है। नहीं तो आप बोलोगे एक पैर इसका कैसा हो गया, सो ये तो इनहेरिटेंस नहीं है, तो इसका पैर भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सही बनाना पड़ेगा ना, हम टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। तो ये है बी विच इज अ चाइल्ड। अब जो ये बी है, मुझे बताओ, ये जो बी है विच इज अ चाइल्ड ऑफ ए, राइट। सो ये बी पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता क्या? इट कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, राइट। यानी जो ए बी सी डी ई है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो चाइल्ड भी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, और ए के पास में जितने भी प्रॉपर्टीज होगी वो ए एक्सेस कर सकता है ना। सॉरी, ए के पास में कितने जितने भी प्रॉपर्टी होगी वो बी एक्सेस कर सकता है। जैसे हाउस हो गया जो कि पेरेंट का होगा, आप पेरेंट का हाउस यूज करते हो ना, बराबर गाइस, हम पेरेंट का हाउस यूज करते हैं, बराबर है, जो कि पेरेंट का है, जो कि ए का है, हमारा तो नहीं है, बराबर है। हम पेरेंट का हाउस यूज करते हैं, बट हम उसको यूज नहीं कर सकते क्या? हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वी आर द चाइल्ड फ्रॉम द पेरेंट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस गाइस। Yes, sir. जैसे मनी है, वी हैव अ मनी फ्रॉम अवर पेरेंट, ओके, सो वी हैव अ मनी, एम ओ एन ई वाई, मनी। अब मनी भी एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी तो है, तो हम एज अ चाइल्ड वी कैन एक्सेस दिस मनी एज वेल। क्यों हम मनी और हाउस यूज कर पा रहे हैं? व्हाई, हाउ इट इज पॉसिबल दैट वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट? Every property we can access, or we have a right to access. How? Why we have this why we have this right to access everything from parent? Yes, because we are a child from it, right? समझ में आ रहा है?
यस गाइस, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सेम तरीके से अगर आपकी पेरेंट के पास सपोज द पेरेंट विल हैव अ फोन, सो लेट्स टेक आईफोन, तो child can access the phone if child want to play a PUBG mobile. Okay, so the child doesn't have any phone right now, so the child can access the phone and do whatever they want. But actually जो डेटा है वो चाइल्ड के पास में है क्या? नहीं है, वो डेटा किसके पास में है? पेरेंट के पास में। समझ में आ रहा है? डेटा इज देयर इन विद द पेरेंट, और वी कैन से डेटा इज विथ और अवेलेबल एट द पेरेंट। डेटा जो पेरेंट के पास में अवेलेबल है, बट एक्सेस चाइल्ड कर सकता है। अवेलेबल चाइल्ड के पास में है क्या? नहीं। प्रॉपर्टी किसकी है? पेरेंट की। बट एक्सेस कौन कर सकता है? ओनली चाइल्ड कर सकता है एक्सेस। समझ में आ रहा है? दिस गाइस क्लियर है? Yes, sir. बट Yes, sir. प्रॉपर्टी चाइल्ड की है क्या? चाइल्ड की नहीं है। व्हाट चाइल्ड कैन डज, that child can only access that data or access that properties from the parent. चाइल्ड के पास में नहीं है। चाइल्ड के पास में हो सकती है कुछ और प्रॉपर्टीज है, कुछ और ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ और प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ और प्रॉपर्टी है चाइल्ड के पास में। बट पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। और चाइल्ड कितनी एक्सेस कर और चाइल्ड क्या क्या प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है? वो पेरेंट की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता है और खुद की प्रॉपर्टी तो एक्सेस ही कर सकता है। समझ में आ रहा है? यानी पेरेंट Yes, means sir. the child can access the its own feature or its own data और पेरेंट का डेटा दोनों। जैसे हमारा, जैसे आपके पास में फोन है, जैसे आपको सिस्टर है क्या? डू यू हैव अ सिस्टर अंकित? Yes, sir. ओके, तो सपोज we will take example of Ankit, which is very very sweet example, right? Okay, so here is a sister we have, so I will write S, and here is Ankit we have. Okay, so in between, uh, so Ankit and sister, they are brother and sister, right? So they can access the data of each other right now, बराबर? अब अंकित के पास में Yes, अंकित के पास में फोन है, ओके, और सिस्टर के पास में भी फोन है, ओके। अब अंकित का क्या हो गया? अंकित का रिचार्ज, यानी उसने इतने पबजी खेल के लिए पूरा जो डेटा था वो खत्म हो गया। 100% उसका डेटा क्या हो गया? खत्म हो गया। मीन्स हियर वी विल से डेटा। डेटा मीन्स हमारा मोबाइल का डेटा, फोन डेटा, ओके, फोन डेटा। अब क्या हो गया? अंकित के पास में खुद का फोन डेटा है और सिस्टर का भी है, फिर फादर का भी है, जितने भी फोन्स होंगे उसके घर में सबका फोन्स का डेटा वो यूज कर सकता है। मीन्स मोबाइल डेटा मीन्स वाईफाई। अब अंकित का 100% जो है वो यूज हो गया। अब उसको काम आ गया कि उसको कुछ अर्जेंटली अपलोड करना है चीजें, या फिर कुछ कुछ भी ऑनलाइन काम आ गया, तो वो किसका डेटा एक्सेस कर सकता है? वो सिस्टर का डेटा एक्सेस कर सकता है। किसका? सिस्टर का फोन डेटा एक्सेस कर सकता है। समझ आ रहा है? अंकित कैन एक्सेस द फीचर ऑफ द सिस्टर, मीन्स द फोन डेटा मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टर। समझ में आ रहा है? yes, sir. समझ में आ रहा है? बट अंकित के पास में क्या क्या ऑप्शन है? अंकित के पास में खुद का भी डेटा है। खुद का डेटा जो है यहाँ पे जिसने वो बोलता हूँ ए, और ये सिस्टर के पास में है बी। तो अंकित क्या क्या एक्सेस कर सकता है? ए भी एक्सेस कर सकता है और बी भी एक्सेस कर सकता है। खुद का भी डेटा एक्सेस कर सकता है और सिस्टर का भी कर सकता है। सेम वे यहाँ पे पेरेंट भी हो सकते हैं, पेरेंट का भी कर सकता है डेटा एक्सेस और खुद का भी कर सकता है। तो अंकित कितने लोगों का डेटा एक्सेस कर सकता है? पेरेंट का भी कर सकता है और खुद का भी कर सकता है। समझ आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, Yes, sir. पक्का पक्का समझ में आया? Yes, sir. अब इन पेरेंट और चाइल्ड को हटा के हम यहाँ पे लगाते हैं क्लासेस, बिकॉज in implementation we will do work like a classes and object, we will work out with the classes. अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, I have a class A, so I will write I have a class A, so this is the ABC data we'll have inside a class A, and I have a class B. Okay, here I have a class B which will have a XYZ data. Okay, so what I want guys, I want कि क्लास बी के अंदर, ध्यान देना, क्लास बी के अंदर मैं ए का डेटा एक्सेस कर सकूं। यानी ये जो ए के अंदर का डेटा है मैं क्लास बी के अंदर एक्सेस कर पाऊं। मैं बोल रहा हूँ एक्सेस कर पाऊं, ये उठ के ए बी से यहाँ पे नहीं आ जाएगा। आई एम सेइंग कि मैं क्लास बी के अंदर ए का डेटा एक्सेस कर सकूं। समझ में आ रहा है? मैं क्लास बी के अंदर ए का डेटा एक्सेस कर सकूं। तो ध्यान देना, इसीलिए इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप बोलते हैं, कि इज अ रिलेशनशिप। जब मैं एग्रीगेशन पढ़ाऊंगा ना तब वहां पे हैज अ रिलेशनशिप आएगा। इसको बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप, बिकॉज जब भी मुझे एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में यूज करना है, सो आई कैन डायरेक्टली यूज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या? जिस क्लास में मुझे यूज करना है, जिस क्लास के अंदर मुझे यूज करना है, मैं उसको बना दूंगा चाइल्ड।
और जिस क्लास का यूज करना है उसको मैं बना दूंगा पेरेंट। समझ में आ रहा है? यस गाइस, योगेश्वरी, धनश्री। Yes, sir. अब जैसे ही मैंने चाइल्ड बना दिया बी को और पेरेंट बना दिया ए को, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, sir. अब जैसे ही ये दोनों कनेक्ट हो गए तो बी, ध्यान देना, बी सबसे पावरफुल है। जो भी चाइल्ड होता है ना वो सबसे पावरफुल माना जाता है इनहेरिटेंस में। चाइल्ड क्लास इज द मोस्ट पावरफुल क्लास। बहुत पावरफुल होता है। ये क्यों होता है पावरफुल? क्योंकि जैसे ही इनहेरिटेंस हुआ, यानी जैसे ही कनेक्ट कर दिया हमने कि मैंने बोल दिया कि ये पेरेंट है और बी को बना दिया चाइल्ड ए का, मीन्स आई कैन से बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए। बोल सकते हैं ऐसे, बराबर? Yes, sir. ओके। तो जैसे ही मैंने ये बोला, इसका मतलब क्या है कि बी के पास में पावर है। बी बी अब पेरेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है और खुद का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, बराबर? मीन्स हाउ हाउ मच मीन्स what are the different data the B can access? B can access ABC. B will have a ABC and XYZ both. Means this is the property the child will have, ABC and XYZ. This ABC is coming from parent. The child will have only XYZ, but as it is a child, it can access the data of the parent as well and itself as well. So that's why the child class is called as the most powerful class, because child class can access the data of itself as well and the parent as well. That's why it is called as मोस्ट पावरफुल क्लास। अगर आपको बोला कि इनहेरिटेंस में सबसे पावरफुल क्लास कौन सा है, चाइल्ड क्लास। क्यों है? बिकॉज चाइल्ड क्लास खुद का भी डेटा एक्सेस कर सकता है और पेरेंट का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। एंड पेरेंट चाइल्ड इज अ रिलेशनशिप, राइट? पेरेंट चाइल्ड इज अ रिलेशनशिप, इजंट इट? यस गाइस, parent child Yes, is a sir. relationship. That's why we will say inheritance is a relationship। inheritance is called as is a relationship। ठीक है? अगर आपने आपको किसी ने पूछा inheritance is a kind of example of is a relationship या फिर has a relationship, has a relationship, दो होता है। एक होता है is a relationship और एक होता है has a relationship। तो हम हमेशा बोलेंगे कि इनहेरिटेंस जो है वो इज अ रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट चाइल्ड एक रिलेशनशिप है। हैज अ रिलेशनशिप है क्या? पेरेंट चाइल्ड का एक हैज अ रिलेशनशिप थोड़ी है। ये होता है कि पेरेंट चाइल्ड का इज अ रिलेशनशिप होता है। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा Yes, है? sir. जब दूर का होगा कोई, जब बहुत दूर का होगा, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, दूर का है, रिश्तेदार है पर दूर का है, वो बोलते हैं इनका कुछ हैज कुछ, इनका कुछ रिलेशन है। बोलते हैं ना कि आप अगर कोई वेडिंग में जाते हो तो कोई बोलता है अरे ये तो इतना छोटा था, मेरे को तो अब तो पहचानता भी नहीं होगा, नाम पता है क्या मेरा, ऐसा वैसा बोलते हैं। अब बोलते हैं यार, फिर हम पूछते हैं ये कौन थे? वो बोलते हैं बहुत दूर के कुछ थे, बराबर है। अब हमें कैसे याद रहेगा? आप जब बचपन में थे, बहुत दूर का कुछ रिश्ता है तो हैज कुछ रिलेशनशिप होगा। समझ आ रहा है? समझ आ Yes, रहा sir. है? Yes, sir. बट आपके फैमिली में जो इज रिलेशनशिप वाले, आप उनको तो पहचानते हो ना? उनको तो पहचानते हो ना, राइट? जब अगर आप बोलते कि आपके बड़े पापा है, तो बड़े पापा है, अंकल है, तो उनका यू यू विल हैव सम रिलेशनशिप विद देम, राइट? यू विल नॉट इज अ रिलेशनशिप उनका, आपको आपका जो उनसे रिलेशनशिप नहीं है इतना है, बट थोड़ा दूर का आता है। हमारे इज रिलेशनशिप में कौन कौन आता है? पेरेंट, चाइल्ड, मदर, बराबर है? या फिर पेरेंट को ही हम मदर और फादर में काउंट करते हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड, इट इज अ रिलेशनशिप बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट, राइट? इट इज अ रिलेशनशिप you have। whatever relationship we build apart from the parent and child, it is not a relationship, it is a has a relationship, right? समझ में आ रहा है? ये होता है Yes, sir. खून का रिश्ता, बोलते हैं ब्लड, ब्लड रिलेशन, बराबर है? बोलते हैं ना हमारा ब्लड का ब्लड रिलेशन है। तो ये होता है पेरेंट। जब इनहेरिटेंस पूछेंगे, अगर बोलता है कि इनहेरिटेंस कौन सा टाइप का रिलेशन है, हैज अ रिलेशनशिप है या फिर इज अ रिलेशनशिप, तो आपको क्या बोलोगे? इज अ रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? बिकॉज पेरेंट चाइल्ड इज अ रिलेशनशिप, है ना? समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. पक्का? अभी तक Yes, जो sir. इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था उसमें 0% भी कुछ प्रॉब्लम है? 0% यानी इसका मतलब कुछ नहीं होता एक्चुअली, जीरो मीन्स कुछ नहीं है आपका डाउट। But do you have a 0.1% like a problem in what is meant by inheritance and how does it work? No, sir.
ओके, तो मेरे पास जावा की नोट्स है, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ जावा, बस उसको किसी को देना मत। ओके, इट इज वेरी वेरी डीपली covered and everything which is very very made very very simple. Those notes are the beauty of the java. किसी को मत देना, ठीक है? क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है। क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं ना, तो किसी को भी क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ है सबको मिल गई ना, तो वो उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो उनको मिल भी जाए ना, तो वो यूज़ नहीं करते। तो आई रियली वांट कि उनके पास में हो जिनको उनकी ज़रूरत है, जो उनका निकालेंगे, यानी उसमें से जो जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, निकालेंगे चीज़ें। किसी को शेयर मत करना, इट इज़ लाइक अ सीक्रेट वी हैव। ओके, अब हम बात करते Yes, हैं sir. कि कितने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या होता है? सिंगल Level. लेवल इनहेरिटेंस। ये आपने किया होगा ना, पढ़ा होगा ना इनहेरिटेंस पहले, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट क्लास होता है और ओनली वन चाइल्ड क्लास होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. वी हैव ओनली वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। समझ में आया? यानी अगर ए बी सी पेरेंट के पास में है, तो चाइल्ड के पास में क्या है? ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड। समझ में आ रहा है? It is not ABC which is directly will like stand it from stand up from here and it will come here inside a B. It is not presented in B. It is presented in the parent, but we are demonstrating like we are representing like this ABC is accessible by the child class. So that's why I will say the B will have a ABC. B can access ABC plus XYZ. So this is B can access, right? This is what B can access. समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला लेवल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल Single लेवल। level. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट? सो यहाँ पे मेरे पास ए है, सो दैट दिस इज बी आई हैव। ए के पास में ए बी सी प्रॉपर्टी है, बी के पास में एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी है। सो नाउ व्हाट आई वांट रियली, आई वांट कि ए बी सी, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी सी के अंदर फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ए बी सी के अंदर मैं बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाऊँ। फोकस करना, थोड़ा गौर करना। एबीसी के अंदर मैं बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाऊँ, सॉरी एबीसी के अंदर नहीं, ए के अंदर मैं बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाऊँ, ए के अंदर मैं बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाऊँ, तो मैं किसको चाइल्ड बनाऊंगा और किसको पेरेंट बनाऊंगा? B is child, A is parent. नहीं, मुझे ए के अंदर फोकस करना, सॉरी सॉरी मैं उल्टा चल रहा हूँ। मुझे बी के अंदर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे पहले फोकस करो। मुझे ए के अंदर बी की प्रॉपर्टी एक्सेस करना है। A ए is के, child, B is parent. A child, B parent. यस, किसके अंदर करना है? किसके अंदर करना है? A B के K, अंदर. B K. ए के अंदर किसके अंदर करना है? किसके अंदर? एक ए के A के अंदर। अंदर. किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करना है? B की. B बी K. की। बीच तो ए के अंदर करना है, तो ए क्या हो जाएगा? Child. चाइल्ड हो चाइल्ड जाएगा। बी की प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, तो बी क्या हो जाएगा? Parent. पेरेंट पेरेंट। अब मैं बोल दूं ये जो एरो होगा ये ऐसा ड्रॉ होगा, बराबर? बोल दो ऐसा, राइट? यस सर अब मुझे बताओ इसमें से सबसे पावरफुल क्लास कौन सा है, ए क्लास है या बी क्लास A class. ए है? ए क्यों है? Because it चाइल्ड is child. दोनों डेटा यूज कर सकता है वो, अपना भी बेस्ट, और पेरेंट का भी. वेरी वेरी गुड। क्योंकि वो खुद का भी डेटा एक्सेस कर सकता है और पेरेंट का भी। इट कैन एक्सेस डेटा ऑफ बोथ पेरेंट एंड इटसेल्फ एज वेल। समझ में आया इतना? यस गाइस। यस सर सबसे पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल लेवल सिंगल इनहेरिटेंस. रिटर्न। दूसरा होता है मल्टी लेवल। क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सबसे पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल लेवल. सिंगल लेवल। सेकंड क्या है? मल्टी लेवल. मल्टी लेवल। मल्टी लेवल यानी इससे पहले जो था हमारा, वो एक सिंगल लेवल था, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस होगी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये ए है, सो दिस इज द ए। इसके बाद में ये बी है, सो दिस इज द बी। ओके, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। सो दिस इज द ए एंड बी। सो वी कैन सिंपली से दिस इज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट? दिस इज
एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट गाइस? क्लियर है ना? समझ यस आ सर। रहा है? अब ये जो चाइल्ड है बी, ये ए से आया है, सो मीन्स बी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड विच इज द इटसेल्फ प्रॉपर्टी, बराबर है? अब जो बी है, सबसे पहले पेरेंट क्या है? ये पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड हो गया, बराबर है? अब बी को आगे जाके चाइल्ड हो गया, समझ में आ रहा है? विच इज अ सी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो यस बोलो। सर। अब जो सी है उसके बाद में प्रॉपर्टी है पी क्यू आर, ओके? तो इट हैज अ पी क्यू आर प्रॉपर्टी, मीन्स दिस इज द चाइल्ड, है यस ना? सर। और पेरेंट क्या हो जाएगा इसका? ये पेरेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है? और ये यस सर। कितने भी लेवल जा सकता है। अब ये जो चाइल्ड है इसका, और ये जो सी चाइल्ड है इसका और चाइल्ड नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, बराबर? यस सर। इट इज हाउ द जनरेशन लाइक गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर अगर बी क्लास ए क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है, फोकस करना, अगर बी क्लास ए क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है, यस इट कैन एक्सेस, तो सी क्लास बी क्लास का भी डेटा एक्सेस कर सकता है और ए क्लास का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। यस सर। समझ में आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री? बोलो बोलो। अगर ए क्लास, ध्यान देना, अगर अगर बी इक्वल टू ए है, राइट? समझ में आ रहा है? बी इक्वल टू यानी बी क्लास ए क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है, बराबर है? समझ में आ रहा है? बराबर है? अगर बी यस इक्वल सर। टू ए है तो सी इक्वल टू क्या होगा? बी। एक मिनट, इसको और ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे इस तरह से करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, समझ आया? ये समझ में आएगा क्या बोल यस रहा सर। हूँ? अगर मेरा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सी इक्वल टू ए भी है और सी इक्वल टू बी भी है। यस सर। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो सी क्लास है, ये ए क्लास का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ए क्लास का डेटा बी एक्सेस कर रहा है, बराबर है? यानी बी क्लास के पास में क्या आ गया? ए बी सी, और इसके पास में क्या है? एक्स वाई जेड विच इज यूनिक प्रॉपर्टी, बराबर है? दिस इज द यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ बी। एंड बी के पास में जो प्रॉपर्टी है एबीसी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, और वी कैन से ए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए। फोकस करना इजी है, ये प्रॉपर्टी जो है वो ए की है। और जो सी है वो किसका चाइल्ड है? वो बी का चाइल्ड है, बराबर है? अब सी के पास में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? सी के पास में एबीसी भी है, एक्स वाई जेड भी है, और पी क्यू आर खुद की भी प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? यस। तो अगर मेरा ए इक्वल टू बी है, ओके, एंड बी इक्वल टू सी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी इक्वल टू ए है, बोल सकता हूँ ऐसा? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड क्लास बी का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, ए का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। इसीलिए चाइल्ड क्लास बहुत पावरफुल होता है। क्यों? बिकॉज इट कैन एक्सेस द डेटा ऑफ बी एज वेल, ए एज वेल। समझ में आ रहा है? और जितने लेवल नीचे नीचे चलता रहेगा, वो सारे ऊपर की डेटा जो है वो नीचे नीचे चाइल्ड के पास में एक्सेसिबल होता रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पेरेंट तो लिंक ही हो रहे हैं ना। समझ में आ यस रहा है? सर। अगर आपके ग्रैंडफादर है, यस सर। आपके फादर है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ग्रैंडफादर जी लिखता हूँ, फिर आपके फादर है एफ, फिर यहाँ से आप हो। अब आपको, आपके ग्रैंडफादर है, उनके पास में कुछ मनी है, सो यू कैन कैन यू एक्सेस द मनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट? यस, यू कैन एक्सेस इट, राइट? यस। यू कैन आस्क मनी फॉर देम। You means you have father, you can have a money near father as well. So what you can write, what you can do means, यहाँ पे a है, यहाँ पे b लेता हूँ, तो ये आपके पास में क्या है? a भी है, b भी है, बराबर है? यू हैव a b बोथ। समझ में आ रहा है? ठीक है? आप यस फादर सर। का भी मनी एक्सेस कर सकते हो और ग्रैंडफादर का भी कर सकते हो, और अगर आप कमाते हो तो आप सी बी डेटा एक्सेस कर सकते हो। मीन्स आपके पास में क्या है? ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों डेटा आपके पास में। समझ में आ रहा है? सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती है। समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, यस सर। धनश्री, बोलो बोलो। अंकित, यस समझ में सर। आया? कुछ भी कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। अच्छा, सबसे पहला लेवल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस।
ओके, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? खुद का एक डेटा। पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास रहता यस, है। ऐसा बोलना है। क्या बोलना है? एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। बोलो वन सेकंड, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? क्या है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस? वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड। यस, वेरी गुड। व्हाट इज माय मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? Two parent class and one child class. नो, टू थोड़ी हो सकते हैं। अब जो सी है, ये जो सी है, मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल। ये जो सी है, सी को और आगे चाइल्ड नहीं हो सकता है कि फ्यूचर में? हो सकता है, हो सकता है इसका डी चाइल्ड हो यस गया। सर। फिर डी डी को और चाइल्ड नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है इसका ई चाइल्ड हो गया। यानी मल्टीपल हो सकते हैं, नहीं बढ़ते रहेगा ये। समझ में आ रहा है? मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल लेवल हो सकते हैं। कब तक लेवल हो सकते हैं? जब तक हमारी धरती तबाह नहीं हो जाती तब तक लेवल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब तक हमारा अर्थ रहेगा तब तक लेवल बढ़ते रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। अगर कोई डिसीजन लेता है कि मैं यहाँ पे ई है, ई डिसीजन लेता है कि मैं कोई चाइल्ड नहीं करूंगा, तो यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से आ रही थी, ई ने डिसीजन लिया कि इसके बाद में चाइल्ड नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो सारा एंड हो जाएगा यहीं पे। समझ रहा है? क्योंकि इसने डिसीजन यस लिया सर। नो चाइल्ड वाला। तो बोलते कोई लोग कि आगे बढ़ना है तो वी विल हैव दिस दिस काइंड ऑफ थिंग हियर। ओके, तो अगर नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो दिस इज द थिंग। अगर आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ा सकते हो। इट इज आवर चॉइस। सो इट इज हाउ इट्स पॉसिबल। सो वी हैव एन मल्टीपल लेवल और वी कैन सी मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि ये है, ये जो पी, ये जो ए है, यहाँ से आपका जनरेशन स्टार्ट हुआ है। फ्रॉम हियर योर जनरेशन स्टार्टेड, राइट? अगर कंसिडर करें तो आप अभी कौन से लेवल पे हो? जिस भी लेवल पे आप होंगे, कोई भी लेवल पे, मैं बोलता हूँ आप 1000वीं लेवल पे हो या 100 लेवल पे हो, 50 लेवल, कोई भी जनरेशन लेवल होगा आपका। बोलता हूँ आपका 68 जनरेशन है, 68वीं जनरेशन है आपकी। कहाँ से? ए से लेकर के एक पहली जनरेशन थी, तो 68 तक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपके पास में ट्रांसफर हो रही है, आते 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 आते। बराबर है ना? यस सर। कुछ ना यस कुछ सर। तो है। देयर इज अ समथिंग। अब आप जब डीएनए टेस्ट करोगे तो वो समझ में आएगा, बट इतना ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा, बिकॉज 68 जनरेशन यानी कितना वेरिएशन हो गया ना, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना? कितना वेरिएशन आ गया है उसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? और वो आइडेंटिफाई कर पाना देख के तो थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 68वीं जनरेशन पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लाइक डायरेक्टली आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इनसाइड यू, राइट? बिकॉज कितनी जनरेशन, कुछ म्यूटेशन भी होते हैं हमारे अंदर, राइट? वी विल हैव अ म्यूटेशंस, है ना? समझ आ रहा है कि हमारे जीन्स यस में भी सर। म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो उससे भी हमारा चेंज होती रहती चीजें। ओके, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हो। अभी हम 68 लेवल पे है, तो हो सकता है कि इसके बाद में आप 67 लेवल भी स्टार्ट कर दो, या फिर 67 लेवल भी आ सकता है। बराबर है? फिर 68, 69, ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। समझ में आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री, अंकित? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में यस क्या सर। होता है? मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, मल्टीपल चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। तीसरा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है मल्टी। सबसे पहले होता है सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, फिर होता है मल्टीपल। क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इट डज नॉट सपोर्ट इन जावा, but यस सर। we can achieve it, we can achieve, but we have to like take the help of interfaces, so we can achieve it. We can achieve the multiple यूजिंग inheritance, इंटरफेस। yeah, with the interface or with the help of abstract classes, so we can achieve it, right? So what is my multiple inheritance which is not supported? So it simply means we have a parent which is a like a and b and c. Okay, and from multiple means what is my multiple inheritance? We have multiple parents, okay, a b c, and they have a single child. समझ में आ रहा है? x। समझ आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री? ओके,
Suppose this have a ABC, this will have a PQR, this will have a XYZ, and it will have all of them. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसके पास में कुछ है, कुछ भी है, लेट्स टेक ABC, XYZ, PQR, MNO, समझ में आ रहा है? So this is not possible actually in Java. So we cannot achieve this. So multiple parent classes है but single child class है. समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री? यस सर। यस सर। सबसे पहले सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल. सो इट इज हाउ द मल्टी, सारी मैं आपको डायग्राम्स बता के बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके काम पड़ेगा ये जैसे करेंगे. अब उसके बाद में लास्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आता है हमारे पास, विच इज, यस एनीवन नो? बोलो बोलो. Hybrid. 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 The multi-level inheritance is also known as hybridization. So it is not possible, right? इसी को हाइब्रिड भी बोलते हैं. है ना? ये हाइब्रिड ही तो है. ये हाइब्रिड. Hierarchical. Yes, we have a hierarchical inheritance. Okay, so single level, multi-level, multiple, and we have a hierarchical inheritance. तो hierarchical का मतलब क्या होता है? हेरार्चिकल का मतलब एक हेरार्ची होती है ना, एक लेवल होता है ना. हेरार्ची का मतलब एक लेवल होता है ना. Yes लेवल sir. यानी अगर आपके कॉलेज में सबसे ऊपर होंगे प्रिंसिपल, राइट? यू विल हैव प्रिंसिपल. सबसे ऊपर लेवल जिनके पास में सबसे ज्यादा पावर है. फिर उसके नीचे कौन हो गया? उसके नीचे हो सकते हैं कि डीन हो आपके, बराबर है ना? Yes. एग्जाम्पल ले रहा हूँ. फिर आपके डिपार्टमेंट वाइज एचओडी होंगे, मैकेनिकल के अलग, HOD. एचओडी के नीचे कौन हो गए? स्टाफ्स होगा, बराबर है. Yes. अब स्टाफ के नीचे कौन होगा? स्टाफ के नीचे होगा चपरासी, बराबर है. चपरासी के नीचे हम. हाँ, चपरा के नीचे आप. ये तो आपको भूल ही गया मैं. आपसे नीचे कोई है क्या? कोई नहीं है. आप सबसे नीचे के लेवल पे आते हो, ठीक है. और आपको बहुत दिक्कत देने वाले सारे जो ऊपर वाले हेरार्चिकल लोग हैं, आपको बहुत बहुत त्रास देने वाले हैं, देते भी है, बराबर. सबमिशन में, प्रैक्टिकल में, बहुत अलग अलग चीजों में. Especially if you are engineering student, so yeah, you have to see how much burden you have, right? कितना burden है ना. तो ये होता है Yes sir. यानी लो आप जो है, आपके पास में तो कोई पावर ही नहीं है. यू हैव नो पावर, राइट? और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे पावर बढ़ती है. तो सबसे पहले पावर किसके पास में आता है? सबसे ज्यादा पावर जो होता है वो प्रिंसिपल के पास में होता है. प्रिंसिपल विल हैव मोस्ट ऑफ द पावर पूरे कॉलेज की. समझ में आ रहा है? इसलिए तो हमें परमिशन लेना पड़ता है ना. तो एक्चुअली इट इज हाउ द लाइक हियरार्ची वर्क. सबसे ऊपर पावर होती है, फिर उससे नीचे पावर होती है, फिर उससे नीचे पावर होती है. नहीं, पावर जो है जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे पावर डिवाइड होती, कम होती रहती है. जैसे जैसे ऊपर जाओगे पावर बढ़ती जाती है. बट एक एक एरिया है जहाँ पे इसका उल्टा होता है. एक एरिया जहाँ पे इसका उल्टा होता है. उल्टा यानी अगर आप सबसे नीचे हो, इफ यू आर लोवेस्ट, तब आपके पास में बहुत पावर है. यू हैव सो मच पावर. जब आप लोवेस्ट हो तब आपके बहुत पावर है. जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो पावर कम होती रहती है. समझ में आ रहा है? कहाँ पे आता है ये? ओके, कहाँ पे आता है? इट इज कम इन द डेमोक्रेसी, राइट? इट कम्स इन द डेमोक्रेसी. समझ में आ रहा है? सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस, जो भी सबसे सबसे लोवेस्ट है, उसको बहुत पावर है. दैट पर्सन विल हैव सो मच पावर. जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं लेवल, वैसे वैसे पावर कम होती रहती है. समझ में आ रहा है? माइनस होती रहती है. समझ में आ रहा है? तो जो सबसे ऊपर है उसके पास में लोवेस्ट पावर है. समझ में आ रहा है? और जो सबसे नीचे है उनके पास में सबसे ज्यादा पावर है, विच इज अस गाइस, राइट? वी हैव सो मच पावर. समझ आ रहा है? Yes sir. ओके. बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास में पावर है. वी डोंट नो वी हैव अ पावर. वी हैव सो मच पावर गाइस. ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव. दिस इज द वेरी वेरी, आप अगर पढ़ोगे इसके बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों, वाई they have given this low person which is lowest
the most of the power, because that person should rise up. That person should rise up from the lowest, and they will become the that person will become better, because lowest को सबसे ज्यादा पावर जो है वो दी गई है. पावर मीन्स फैसिलिटी, राइट, एंड यू विल कॉल इट रिजर्वेशन. तो सबसे लोएस्ट लोगों को रिजर्वेशन क्यों मिलता है? क्योंकि वो सबसे लोएस्ट है, वो सबसे लो लेवल पे आते हैं, उनके पास में ना रिसोर्सेस है ना कुछ है, ना बहुत सारी चीजें होती है वहां पे. तो उनको राइज अप करने से, उनका लोएस्ट लेवल को से उनको राइज अप करना है, ऊपर लाना है उनको, लोएस्ट लेवल से उनको ऊपर लाना है. सो दैट्स व्हाई द रिजर्वेशन इज गिवन टू द लोएस्ट पर्सन. जो भी लोएस्ट दिख रहा है ना आपको, जो भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो भी सबसे लोएस्ट चीज दिख रहे हैं आपको, उनको बहुत फैसिलिटी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो करना नहीं चाहते मोस्ट ऑफ द थिंग टाइम, क्योंकि उनको नहीं करना है, क्योंकि उनके पास में बहुत पावर है, वो उनको पता नहीं है. अगर लोएस्ट लोगों को पता चल गया ना कि हमारे पास बहुत पावर है, तो दे कैन राइज अप फ्रॉम द करंट सिचुएशन, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस करना पड़ता है एज अ लोएस्ट पर्सन लिविंग. They can rise up, guys. They can have a better life. Okay, they can be educated. They can get a job. Okay, so that's why the reservation is given. Okay, so the idea behind it, very very good history. If you will read, if you have open mind, you will get uh, so much more about this. बहुत अच्छे हैं ये है. तो hierarchical inheritance में क्या होता है? The top will have. अब hierarchical में क्या होता है? Hierarchical किस तरह से होता है? मेरा साउंडर है. Can you hear me, guys? Yes, sir. Hierarchical Yes. inheritance में क्या होता है? We have a one class. So I have a A. अब ए के पास में दो क्लासेस होती हैं, बी एंड सी. समझ में आ रहा है कैसा हिरार्चिकल स्ट्रक्चर काम करता है? Yes, sir. अब बी के पास में और कुछ होते हैं. बी के पास में समझ बोलता हूँ, कुछ एक्स एक्स है, कुछ वाई है, कुछ जेड है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस तरह से लेवल जो है वो बढ़ते रहता है. समझ में आ रहा है? सो देयर वी हैव मल्टीपल हिरार्चिकल मींस, देन एक्स कैन अगेन हैव सम लाइक अ चाइल्ड, वाई कैन हैव अ चाइल्ड, सी कैन हैव अ चाइल्ड. समझ में आ रहा है? यस यस. Yes, sir. अच्छा, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि पेरेंट है और चाइल्ड है. अब यहाँ पे ब्रदर बी है, उनको ब्रदर कंसिडर करो, सी है उनको सिस्टर कंसिडर करो, सिस. अब पेरेंट है, सो वी हैव अ पेरेंट. अब पेरेंट के दो चाइल्ड है, वन इज बॉय एंड वन इज गर्ल. ओके. अब पेरेंट के पास में एबीसी प्रॉपर्टी है, फोकस करना है, एबीसी प्रॉपर्टी है. अब जो बी है उसके पास में कुछ प्रॉपर्टी है विच इज एबीसी एंड एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी. बराबर है? बराबर? समझ आ रहा है? यस गाइस. और जो सिस्टर है उनके पास में एबीसी प्रॉपर्टी भी है और पीक्यूआर प्रॉपर्टी भी है. बराबर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अच्छा, मुझे बताओ, क्या बी क्लास ए क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है? डज इट इट्स पॉसिबल गाइस? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, बोलो बोलो. साउंड आ रहा है? मेरा साउंड आ रहा है क्या? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. बोलो ना, फिर इतना क्यों टाइम लगा? जो बी क्लास है, क्या वो ए क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है? Yes, sir. यस. क्या जो सी क्लास है वो ए क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है? Yes. Yes, बट sir. बट ऐसा कंसिडर करो कि अंकित का लाइक रिचार्ज, अंकित होने यहाँ पे कि चले गए? अंकित आ रही है? Yes, sir. अच्छा, तो आपका एग्जांपल है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंकित का प्रेजेंस होना चाहिए ना. अंकित नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा. तो अगर अंकित का रिचार्ज खत्म हो गया है, तो यहाँ पे बी का डेटा खत्म हो गया है ना, जो है वो 100% यूज हो गया है रिचार्ज. अब वो सिस्टर के पास में गया, अंकित ने बोला मेरे को हॉटस्पॉट चाहिए, मेरे को बस थोड़ा सा मेरे को पीडीएफ भेजना है, ग्रुप में प्रेजेंटेशन है तो मेरे को भेजना है. वो सिस्टर के पास में उसने डेटा एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो सिस्टर क्या बोलेंगी? मैं मेरा डेटा नहीं दूंगी. समझ में आ रहा है? तेरा फोन का तूने यूज कर लिया ना, अब मेरा फोन का मैं दूंगी नहीं. समझ में आ रहा है? यानी पी क्यू आर जो है वो बी एक्सेस नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो Yes, Yes, sir. sir. बी जो है वो ए का डेटा एक्सेस कर सकता है, सी जो है वो ए का डेटा एक्सेस कर सकता है, बट बी जो है वो सी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता. सी जो है वो बी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता. तो ये डेटा एक्सेसिबल नहीं होता है इस तरह से. ओनली पेरेंट का डेटा एक्सेस होता है. क्या बी और सी पेरेंट है? जो क्या बी और सी में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है? नहीं है. राइट? समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, बोलो बोलो. Yes, sir. तो इस तरह से डेटा एक्सेसिबल नहीं होता है. किसका होता है? ओनली पेरेंट का
और चाइल्ड का। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, क्लियर है? अंकित, योगेश्वरी? यस सर। So it is how the inheritance work. What are the different types of inheritance we have? Okay, so in Java we actually have a 4 type of inheritance. First is Single level. single layer. For single layer में कितने parent class child class होते हैं? वन पेरेंट One क्लास, parent वन and one चाइल्ड child. क्लास। Okay, उसके बाद में दूसरा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है? मल्टीपल पेरेंट क्लास रहते हैं और मल्टीपल चाइल्ड क्लास रहते हैं। यस, बोलो धनश्री, योगेश्वरी, बोलो बोलो बोलो, धनश्री, योगेश्वरी, क्या होता है? Multiple parent class and multiple child class. यस, उसके बाद में तीसरा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? Multiple. मल्टीपल इनहेरिटेंस। Yes, so multiple inheritance we know, right? What is multiple inheritance? Then third, then last type of inheritance क्या है? Hierarchical. Hierarchical. हिरार्चिकल। Hierarchical inheritance में this crosswise data is not possible to like accessible, right? This is not possible here, है ना? Only parent और child का data access होता है. Child में एक दूसरे के साथ data access नहीं होता है. समझ में आ रहा है? Child data access नहीं करता है ना? ये दोनों child ही तो है, B भी child है और A भी C भी child है. अब दोनों एक दूसरे से डेटा एक्सेस नहीं करता है, तो डेटा किसका एक्सेस होता है? ओनली पेरेंट का ही डेटा एक्सेस होता है। समझ में आ रहा है? तो पेरेंट केस में ए है तो ए का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, बट चाइल्ड में डेटा एक्सेस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चाइल्ड में नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस गाइस? सपोज दिस इज द चाइल्ड वी हैव बी, सपोज दिस इज द बी चाइल्ड वी हैव, बी दिस इज अ सी चाइल्ड वी हैव। अब ये दोनों चाइल्ड एक पेरेंट से आ रहे हैं, बराबर है? ये दोनों चाइल्ड एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, विच इज ए। समझ में आया इतना? बोलो योगेश्वरी, अंकित, धनश्री। यस सर। ओके, तो ये बी और सी एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है। अगर बी से सी आता था, यानी बी जो है वो सी का पेरेंट होता था, तो फिर सी एक्सेस कर पाता था, बट बी तो जो है वो सी का पेरेंट नहीं है। इट इज अ कजन्स, द राइट, दे आर लाइक ब्रदर्स और सिस्टर्स, सो दे कैन नॉट एक्सेस द डेटा ऑफ ईच अदर। समझ आ रहा है? तो इसे रियल लाइफ में होता भी है ना। आप अपने सिस्टर में ब्रदर को बोलोगे अब मेरे को टीवी का रिमोट चाहिए, तो आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता। मिलता है क्या? टीवी का रिमोट या फिर कुछ चीजें आप जब मांगते हो तो मिलता है क्या आपको? रेयरेस्ट तो रेयर केस में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अगर मिलता है तो इसका मतलब है आप में इजर रिलेशनशिप फॉलो होता है, बराबर? यस सर। अगर नहीं मिल रहा है तो इजर रिलेशनशिप तो है, बट सामने वाला वो आपको नहीं दे रहा है एक्सेस। यानी एक्सेस तो कर सकते हो ना, वैसे कर तो सकते हो ना एक्सेस वैसे। अगर आप अगर